Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 12 Commerce OCM, we'll continue with our chapter number 6, that is directing. So students, here we are at the last topic of the chapter, that is barriers to effective communication and measures of overcoming it. Before starting today's session, let us recap what we have learned. We started with directing, meaning of it, concept of it, characteristics and importance. Then we learned about the elements of directing. There were four major elements: motivation, supervision, leadership and communication. We learned about supervision and functions of supervision. We learned about motivation and characteristics of motivation. Then we learned about leadership and characteristics of leadership, qualities of good leaders. Then we learned about financial incentives and non-financial incentives. And then we learned about, at last, communication. In that we learned about characteristics and importance. And in the previous video from this chapter we learned about formal and informal communication. So today we'll start with barriers of effective communication. Okay, what do we mean by barriers of effective communication? बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स जिस तरह का कम्युनिकेशन हम चाहते हैं, जिस तरह का आइडियल कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं. और बैरियर्स मीन्स रुकावटें. तो ऐसे कौन सी हर्डल्स है, ऐसे कौन सी रुकावटें हैं या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से, कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन एक आइडियल कम्युनिकेशन ना हो सकता हो या हमारा कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता. ओके, सो लेट अस सी. The effectiveness of communication depends on intelligence and loyalty of the officers and employees. Communication is a human activity, so human limitations such as affection, mistakes, estimation, misunderstanding, distrust, fear, and so on come as barrier to it. Such barriers can be as follows. मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैरियर्स मीन्स इफेक्ट कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने से रोकती है. तो क्या क्या है? Let us see. First is lack of planning. If the order of information is not planned, sender will give wrong and unclear and incomplete information. So first thing is कि आपने प्लान नहीं किया कि आपको क्या फ्लो करना है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कैसे देनी है. अगर आपने प्लान नहीं किया, लैक ऑफ प्लानिंग है, तो सेंडर जो है या तो गलत इन्फॉर्मेशन देगा या अनक्लियर देगा या इनकम्प्लीट देगा. ओके, सो फर्स्ट बैरियर इज लैक ऑफ प्लानिंग. Second is faulty transaction. Employees working at middle level receives messages from top level. Such messages may not be in mother tongue. After analyzing this information are sent to bottom level. At that time chances of mistake in translation are there. मीन्स क्या होता है कि टॉप लेवल से इंग्लिश में या कोई भी ऐसे लैंग्वेज में मैसेज फ्लो हुआ, मिडल लेवल वो मैसेज को ट्रांसलेट करके बॉटम लेवल को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि वो मैसेज मदर टंग में तो होगा नहीं, जो या फिर ऐसी लैंग्वेज में नहीं होगा जो बॉटम लेवल को समझ में आती. तो वहाँ अगर ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक हो गई तो जो मैसेज कन्वे टॉप लेवल करना चाहता था वो मैसेज कन्वे नहीं होगा. क्लियर? नेक्स्ट इज अनक्लियर मैसेज. Many times in use of various mediums of communication, important matters are presented in unclear manner. Words and sentences are arranged in improper manner. There is no coordination in messages. As a result, such messages are failed to give clear understanding to the receiver. Thus, it obstructs communication process. कभी कभी हम ऐसे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर लेते हैं जिनकी वजह से हमारा जो मैटर हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो बहुत ही अनक्लियर मैनर में प्रेजेंट होता है. सेंटेंसेस, वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज नहीं होते, मैसेज में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, और अगर ये सब होता है तो जो मैसेज हम देना चाहते हैं उसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हम फेल हो जाते हैं उसमें. क्लियर? नेक्स्ट इज अनक्लियर अजम्पशंस. मैनी मैसेज डिपेंड्स अपॉन गेस वर्क and assumptions. If they are not clarified while transmitting message, there may be change in their meaning and importance. कभी कभी कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो गैस वर्क और assumption पे डिपेंड करते हैं. तो अगर जब ट्रांसमिट कर रहे हैं, जब हम उनको वो मैसेज दे रहे हैं, अगर तब हमने उनको समझाया नहीं तो चांसेस हैं कि वो
कुछ और ही अज्यूम कर ले और कुछ और ही गैस कर ले, अनक्लियर अजम्पशंस हो जाए उसमें और उससे उनका मीनिंग या इंपॉर्टेंस चेंज हो जाए. क्लियर. नेक्स्ट इज shortage of time. Many times decisions are taken on the basis of information. After getting information, it is to be implemented. If informations are not available on time, then there is no meaning of it. अगर कभी कभी टाइम कांस्टेंट भी होता है, कभी कभी इंफॉर्मेशन फ्लो करने से ज़्यादा टाइम मैनेज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो कोई ऐसे केस में शॉर्टेज ऑफ टाइम हो जाता है तो भी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता. क्लियर. ओवरबर्डन इन कम्युनिकेशन. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि कांस्टेंट और कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन होता है. बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज जो भी होती है उसमें रेगुलरली डेली 100, 120, 50, 150, 200, 250 कॉरेस्पॉन्डेंसेज होते हैं लेटर के थ्रू. तो वहाँ पे अगर एक या दो ही एम्प्लॉय है सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए या कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, तो क्या होगा कि उनके वो ओवरबर्डन्ड होंगे. और अगर ओवरबर्डन्ड है तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि वो उनकी फंक्शंस या उनके परफॉर्मेंस प्रॉपर ना हो, उनके फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म ना कर पाए. ओके. सो ओवरबर्डन भी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं एक बैरियर का वर्क करता है. नेक्स्ट इज ignorance towards message. Many times higher managers or bottom level employees remain inattentive and careless regarding messages. Therefore company does not get correct information. कभी कभी क्या होता है कि ignorance शो हो जाती है, कोई important messages या information इग्नोर कर देते हैं, भले वो टॉप लेवल हो, हायर मैनेजर्स हो या बॉटम लेवल हो. तो उसकी वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता. ओके. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया. जो हमारी इंफॉर्मेशन में फ्लो करनी है, अगर वो प्रॉपर मीडियम से फ्लो नहीं करी गई, देन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर क्रिएटेड. मीन्स अगर मेरे पास लेंदी मैसेज है कोई, अगर मैं ओरली बोल जाऊंगा और वो वैसा है कि उनको याद रखना चाहिए पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, तो वो बैरियर टू कम्युनिकेशन हो जाएगा. अगर लेंदी है और वो बार बार गो थ्रू करना पड़े, ऐसा है बार बार समझना पड़े या रीड करना पड़े, तो बेटर होगा कि मैं रिटर्न में फ्लो करूँ उस मैसेज को इंस्टेड ऑफ ओरली. ओके. सो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू कम्युनिकेशन. अगर इम्प्रॉपर मीडियम सिलेक्ट हुआ है तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. एंड लास्ट इज डिस्ट्रस्ट एंड फियर. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ डिस्ट्रस्ट और फियर का एटमॉस्फेयर है, मीन्स कोई किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहा, सब एक दूसरे से डरे हुए हैं कि कोई किसी के बारे में क्या बोल देगा, कोई किसी के बारे में क्या सोच रहा है, डाउट्स का एनवायरनमेंट है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगा. ओके. और ये सब एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ही शो करेंगे. क्लियर. सो दिस 9 वर द barriers to effective communication. Now let us see measures to overcome the barriers of communication. जो हमने 9 barriers पढ़े, उन ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉपिक डिस्कस किए जिनकी वजह से कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. तो ऐसे कौन से रीजंस है, ऐसा क्या करने से ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है. लेट अस सी. फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी अरेंज्ड एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से चलिए तो आपका कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा. इंफॉर्मेशन गिवन बाय सेंडर शुड बी प्रिसाइज. इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिसाइज. बहुत लेंदी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टू द पॉइंट, एकदम प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. Select various mediums of communication have different effects. Therefore an appropriate medium of communication should be selected. अभी हमने आगे डिस्कस किया कि अलग अलग मीडियम्स के अलग अलग इफेक्ट है, तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडियम. ओके. Communication is a two-way process. It should be arranged in a manner as information must flow in both the direction. Communication two-way process है, तो जनरली ऐसे ही कम्युनिकेशन अरेंज करना चाहिए कि जिससे दोनों तरफ इंफॉर्मेशन या डायरेक्शंस फ्लो हो. फीलिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इज मस्ट बिटवीन टू पार्टीज. कोऑपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए कम्युनिकेटिंग करने वाली दो पार्टीज के बीच में, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा.
Communication channels should be shorter as much as possible so that the flow of information will not stop and there will be no delay in communication. कम्युनिकेशन का चैनल जो भी हो वो जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखो. अगर आपको बॉटम लेवल तक कोई मैसेज पहुंचाना है, अगर आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो डायरेक्ट पहुंचो, वरना यू शुड गो थ्रू मिडल लेवल. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने टॉप से टॉप मिडल 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 बॉटम बॉटम मीन्स एक इंटरमीडिएट की जगह आपने 4 4 5 5 के थ्रू वो मैसेज फ्लो किया. जितना लंबा आपका चैनल होगा उतना आपकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी. ओके. कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी फास्ट. आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी हो फास्ट होना चाहिए. योर कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी गोल ओरिएंटेड. कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी हो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए. ओके. ब्रॉडकास्टिंग ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इंक्रीज द बर्डन ऑफ कम्युनिकेशन. सो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर. कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है. क्लियर. टाइम टू टाइम इवेल्युएशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम should be done as per the changing system. Changes can be made means time to time आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, कैसा वर्क कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा, उसका भी सर्वे होना चाहिए, उसका भी ध्यान देना चाहिए. उसके ऊपर भी अगर कोई ज़रूरत है तो उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सेंडर शुड नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन मैसेज. मीन्स पूरे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सेंडर के कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए उसमें. ओके. अगर पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा कि सेंडर या तो कुछ मैसेज हाइड कर लेगा पर्पसफुली या जानबूझ के कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा. ओके. तो जिससे कम्युनिकेशन वापस इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा. इसलिए चांसेस ये रखे कि सेंडर्स का कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट उसमें ना हो. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज वीडियो, today's session. This is all from chapter number 6 from OCM, that is डायरेक्टिंग का चैप्टर हमारा आज यहीं फिनिश होता है. आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज़ फिल डाउन द कमेंट सेक्शन. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग.